अनुज सिंह आज आपको बेसिकली फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स का मैं चैप्टर नंबर 3 लाया हूँ। तो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस चैप्टर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सी आपका जो मैथ्स का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 है पार्टीशन वैल्यू, और इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 पार्टीशन वैल्यू, दोनों सेम ही है। तो आज मैं एक तीर में दो शिकार कर रहा हूँ। बेसिकली क्या आपका मैथ्स भी कवर अप कर रहा हूँ और आपका इकोनॉमिक्स भी कवर अप कर रहा हूँ। So I am trying to cover up economics chapter number 3, basically partition value, and along with that I am also trying to cover up maths part 2 11th standard first chapter. So let's go with it, friends. Now before I start with I just wanted to thank everybody क्योंकि YouTube पे हम लोग 500 more than 500 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गए, and all thanks to all of you, and appreciate all your feedbacks, your positive comment. And this really motivates me to do more effort, so thanks a lot, and keep doing this. Subscribe, shares with maximum number of people. Let's go ahead with friends. So we are into partition value. Now understand friend what is there in the partition value. So first statement is, what do you have in the partition value, friends? So if you ask me, partition, the word partition means what? तो अगर पार्टीशन का मतलब समझना चाहोगे तो क्या होगा, तो सिंपल मीनिंग ऑफ पार्टीशन इज डिवीजन। याद करो ना, पार्टीशन ऑफ इंडिया मतलब डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वर्ड पार्टीशन इज डिवीजन, स्प्लिटिंग, डिवीजन, सेग्रीगेशन, बाइफिकेशन, ऑल वर्ड मीन्स वन सिंपल बंटवारा करना। अब इस चैप्टर में क्या बंटवारा करेंगे साहब, वी वुड बी डिवाइडिंग द डेटा इनटू quartile, decile and percentile. But the information that you are studying going to be divided into 3 aspects. So what are we going to study in the partition value? This is, I am covering both your economics and maths both. So friend, what are the concepts? See, whenever I teach maths, my strategy is, there are 3 words I tell them. CFA. C means concept, F means formula, and E means application. So in this way you need to understand this chapter. You need to understand the concept of it, you need to understand the formula of it, and the last that you have is you need to understand the application base. Now in this chapter what we have, so we have something called as quartile, then we have decile, and the last we have is percentile. These are 3 things that you have in this chapter. Now take one at a time. Now what is quartile, friends? So let me come at type 1. Type 1 is, we are going to study about quartile. Now what is quartile? Simple. The meaning of quartile, understand, when you take any data and you study those data, you divide the data into 4 parts and study, then we call it quartile. Simple. Quarter मतलब 4 हिस्सा. Quartile is a 4 part. So this is quartile 1, this is quartile 2, this is quartile 3, and this is quartile 4. आपकी लाइफ ले लेता हूँ बच्चों, 60 साल की आपकी लाइफ है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा, 0 to 15 years आपका फर्स्ट क्वार्टर होता है। 15 to 30 years इज अ क्वार्टर नंबर 2। आप सब क्वार्टाइल 1 क्रॉस हो चुके, आप सब क्वार्टाइल 2 में हो। 30 to 45 is a quartile 3, and the last you have is 45 to 60. तो कोई भी इंफॉर्मेशन ले लो, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, उस 4 हिस्सों को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वार्टाइल। आई होप यू अंडरस्टूड। सो इन केस आई टेल यू व्हाट इज क्वार्टाइल, रिमेंबर दिस, व्हेन डेटा बीइंग स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स, देन वी कॉल इट क्वार्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू आई फाइंड क्वार्टाइल? Now what I would do, friend, in this I will try to help you with the quartile, decile and percentile, all 3 at a one stroke. Now what is decile, understand? Decile is when data being split into 10 parts. मतलब कोई इंफॉर्मेशन को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेसाइल। अभी देखो यार, 60 साल की लाइफ है, अब वो 60 साल को 10 हिस्से में डिवाइड करना तो 6, 12, 6, 12, 18, 24, 30 ऐसे आएगा। सो डेसाइल 1, डेसाइल 2, डेसाइल 3, ऐसे लास्ट आता डेसाइल 10। सो व्हेन एनी इंफॉर्मेशन being split into 10 parts and studied, we would be calling it decile. I hope you understand. आपकी लाइफ
अब समझो 60 साल की लाइफ है तो 6 साल 12 साल 18 साल डेसाइल 3 24 ईयर्स तो 6 के डेसाइल। तो इन कोई भी इंफॉर्मेशन, इनकम ले लो, प्रोडक्शन ले लो, कंजम्पशन ले लो, कुछ भी ले लो, वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन को 10 हिस्सों में बांट दो साहब, तो आप क्या बोलोगे? यू विल कॉल इट डेसाइल। अब तीसरा कंसेप्ट, सो दिस इज आई एक्सप्लेन्ड यू अबाउट डेसाइल। व्हाट इज डेसाइल? डेसाइल इज नथिंग व्हेन इंफॉर्मेशन बीइंग स्प्लिट इनटू 10 पार्ट्स। I hope you understood. Now third aspect friend, the third thing you have is percentile. आपने इसको सबसे ज़्यादा अपने लाइफ में यूज़ किया। This is the maximum you have used in your life. When any information being divided into 100 parts, information being divided into 100 parts, I would call it percentile. जब मैं बोलता हूँ 30%, इसका मतलब 100 में से 30 मिले ना, 100 पार्ट उसका 30 पार्ट। लेट्स से आई से ये आपके 100 पार्ट में इंफॉर्मेशन को डिवाइड करो, कोई भी डेटा ले लो, उसको 100 हिस्सों में डिवाइड करो, और वो 100 हिस्सों को अपन क्या बोलेंगे? डिसाइड। सो सिंपल, फर्स्ट थिंग आई एक्सप्लेन यू कंसेप्ट, लेट मी जस्ट रिपीट द कंसेप्ट। Concept about quartile, concept about decile, concept about percentile. What is quartile? Data split into 4 parts. What is decile? Data split into 10 parts. And what is percentile, my friend? Data being split into 100 parts. A step ahead. Now I hope you understood percentile का मतलब क्या होता है. What is percentile, friend? So percentile is when data being split into 100 parts. नेक्स्ट, अब आ जाते हैं कैलकुलेशन बच्चों। सो पहला क्वार्टाइल रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसमें वी विल फाइंड क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ऑल। क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या बच्चों? क्वार्टाइल एन इज एन इंटू एन प्लस 1 होल डिवाइड बाय फोर्थ टर्म। क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है? एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ टर्म इज व्हाट? इट इज योर क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल ढूंढना है तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 4। नेक्स्ट, अब n कुड बी 1, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। नॉर्मली दे आस्क यू क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 4 इज द एंटायर डेटा। अच्छा, वैसे डेसाइल पूछा तो क्या फॉर्मूला आएगा साहब? सो आई विल राइट विद द अदर कलर। डेसाइल वुड बी n इंटू एन प्लस 1 होल डिवाइड बाय 10th टर्म। मतलब वहां n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 था, यहाँ n प्लस 1 डिवाइड बाई 10 है। अच्छा, ये रॉ डेटा की बात कर रहा हूँ। कौन सा डेटा? रॉ डेटा आर सिंगल डेटा। सी द डेटा कुड बी रॉ डेटा, फ्रीक्वेंसी डेटा एंड ग्रुप डेटा। नाउ व्हाट इज रॉ डेटा? वेयर द इंफॉर्मेशन आर इन सिंगल टर्म्स। इन दैट केस क्वार्टाइल का फॉर्मूला इज QN, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 4। एंड व्हाट इज डेसाइल? n इंटू एन प्लस 1 divided by 10. मतलब divide by 10, then you get decile. Now if it is asked, let's say it is asked what is percentile. Same way percentile, friend, it is n into n plus 1 divided by 100th term. मतलब सिंपल है साहब, अगर n into n plus 1 divided by 4 किया तो क्वार्टाइल आएगा, n into n plus 1 divided by 10 किया तो डेसाइल आएगा, और n into n plus 1 divided by 100 किया तो क्या आएगा? परसेंटाइल आएगा। And this is for which, this formula is for which one? It is basically for raw data. Chalo, I'll take the question, I'll solve the question and you understand more way. So let's say I give a question. The question is 3, 5, 2, 8, 6, 4, 9, 12. तो बच्चों ये 5 है आपको. Okay, and let's say I give more 9 repeated and then 40. So these are the information that is being given to you. 3, 5, 2, 4 इसमें और 4, 8 और 3. So these are the data being given. अब मैं इसमें बच्चों सी I will देखो एक सम करूँ, 2 सम करूँ या 10 सम करूँ, concept same. So I cannot take many sums because we have very limited time and have to cover many things. So मैं एक simple short में आपको ये concept बता देता हूँ, ठीक है ना? अब बच्चों इसमें पूछा है फाइंड आउट क्वार्टाइल 1, फाइंड आउट क्वार्टाइल 3, फाइंड आउट क्वार्टाइल 2, फाइंड आउट डेसाइल 3, डेसाइल 5, फाइंड आउट परसेंटाइल 20 एंड परसेंटाइल 50। अब मैं ये क्वेश्चन में सब कुछ पूछा हूं। इन दिस आई हैव आस्क्ड ऑल 3, क्वार्टाइल भी, डेसाइल भी, परसेंटाइल। अब बच्चों तीनों क्वार्टाइल, डेसाइल 2 और परसेंटाइल 2, ये सब कुछ एक सम में पूछा।
अब ध्यान से ध्यान दो, एकदम अच्छी तरह से सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू शुड अंडरस्टैंड इज कि पहला काम है सोल्यूशन। यू सी स्टेप नंबर 1, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सो व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? स्टेप 1 इज अरेंज द डेटा, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर। सो यू नीड टू डू इज, अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सिंपल, छोटे से बड़ा। आपका फर्स्ट बर्थडे 1 ईयर, सेकेंड बर्थडे 2 ईयर, थर्ड ईयर, छोटे से बड़ा इज असेंडिंग ऑर्डर, राइट? तो आपका बर्थडे, कैलेंडर ईयर, ये सब असेंडिंग ऑर्डर होते सब। तो अब इसमें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना है। तो चलो लेट्स टेक द डेटा एंड अरेंज इट इनटू असेंडिंग ऑर्डर। बच्चों डेटा क्या है? 3, 5, 2, 8, 6, 4, 9, 12, 9, 14। तो सबसे पहला नंबर जो आएगा वो क्या आएगा? द फर्स्ट नंबर दैट यू विल गेट इज व्हाट? सो बेसिकली फर्स्ट नंबर इज फ्रेंड, इट इज सबसे पहले आ रहा 2। दूसरा नंबर जो आएगा वो क्या आएगा? 3। तीसरा नंबर क्या आएगा? 4। उसके बाद का कौन सा नंबर है बच्चों? 5। उसके बाद क्या है? 6। उसके बाद क्या है? चलो यार ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बच क्या रहा है? देन इट इज 7 तो है नहीं, तो लेट्स से 9। उसके बाद क्या आ रहा है? अगेन 9। बच्चों 8 भी है, 8। सो 8, देन 9, 9 ट्वाइस, 8, 9, 9। उसके बाद क्या आ रहा है? 11 एंड देन 12 और 14। दीज आर द नंबर्स एक्चुअली वी हैव। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। हम लोग ने सिंपल से काम किया, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एन इज, अब एन, स्टेप नंबर 2, फाइंड आउट एन। एन कितना है बच्चों? एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कितने उसमें डेटा है। तो 11 डेटा, तो एन इज 11। अब बच्चों एन मिल गया। अब चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला। व्हाट इज क्वार्टाइल 1? 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4th टर्म। अब क्वार्टाइल 1 बच्चों 1 एज इट इज, n क्या है? 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 4th टर्म। अब बच्चों 1 इंटू 11 प्लस 1 12 डिवाइड बाय 4, तो 11 प्लस 1 12 डिवाइड बाय 4 इज थर्ड टर्म ना। सो क्वार्टाइल 1 आपका क्या है? थर्ड टर्म आया। अब असेंडिंग ऑर्डर में थर्ड टर्म कौन सा है वो जाके चेक कर लो। विच इज द थर्ड टर्म? दिस इज द थर्ड टर्म। सो क्वार्टाइल 1 क्या हुआ? 4 हुआ। सो आई होप यू अंडरस्टूड क्वार्टाइल 1 इज 4। अब सिमिलरली आई आस्क यू क्वार्टाइल 2। तो क्वार्टाइल 2 के लिए सेम फॉर्मूला लगाओ बच्चों। क्वार्टाइल 2 इज 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4th टर्म। या 2 एज इट इज, n क्या होगा? 11 प्लस 1 अपॉन 4th टर्म। बच्चों व्हाट इज टू बी डन? सिंपल, 2 इंटू n, 11 प्लस 1 12 डिवाइड बाय 4 इज 3। सो इट वुड बी थर्ड टर्म। अब 3, 11 और 1 12 डिवाइड बाय 4 3 है। 3 इंटू 3 कितना टर्म होगा बच्चों? इट वुड बी 3 2 जा 6 विच इज 6th टर्म। अब असेंडिंग ऑर्डर में चेक कर लो ना 6th टर्म कौन सा है। तो बेसिकली 6th टर्म इज विच टर्म? तो इट इज 8। It is 8. So in that case quartile 2 is 8. अब आता क्वेश्चन बच्चों, क्वार्टाइल 3 है, सेम फॉर्मूला यार। अब n पे क्या आएगा? 3 आ जाएगा। सो नाउ लेट्स सॉल्व विद क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 3 इज 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4th टर्म। सो 3 एज इट इज, ये 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 4th टर्म। बच्चों 3 एज इट इज, और 11 प्लस 1 ये तो थर्ड टर्म ही आएगा। तो 3 इंटू 3 इज 9th टर्म। दिस इज क्वार्टाइल 3। अब क्वार्टाइल 3 9th टर्म क्या है जाके लिख लो। व्हाट इज क्वार्टाइल 3 फ्रेंड्स? 9th टर्म क्या आ रहा है आपका? बेसिकली 9th टर्म इज, सी इफ इट इज, बेसिकली 9th टर्म इज, सो 3 6 7 8 9 इज 11. So quartile 3 is what? Quartile 3 is, I write down here, it is 11. So quartile is over. Now what to go for? Go for decile. Friends, what decile? D3 and D5. एक बात याद रखना,
quartile 2, decile 5 and percentile 50 is one and the same. You will find out same answer and I will tell you why it is. But चलो पहले decile को solve कर लेते हैं. तो simple है बच्चों, decile कैसे solve करेंगे? Simple. तो decile का formula क्या है? D3. तो 3 into n plus 1 divide by 10th term. मतलब सिंपल है यार. डेसाइल की केस में क्या कर रहा हूं? बस डेसाइल को मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूं. अब सिंपल है. सो D3 वुड बी 3 इंटू n इज 11 प्लस 1 अपॉन 10. तो बच्चों 3 इंटू 11 प्लस 1 इज 12th टर्म. तो यार 11 अपन 12 इज 1.2 और 3 इंटू 1.2 इज हाउ मच बच्चों? 3.6 टर्म. अब यार 3.6 टर्म बच्चा कंफ्यूज होता है. आई नो बच्चा कंफ्यूज होता है, मैं समझाता हूँ, डोंट वरी. अब बच्चों जब ऐसे आए ना, डेसाइल 3 इज 3.6 टर्म, इसका मतलब क्या है बच्चों? थर्ड टर्म आपको तो लेना ही है प्लस. अब देखो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, जो 0.6 है ना, 0.6. अब 3.6 मतलब 3 तो रहेगा, बट जो 0.6 है वो 4 और 3 के बीच में. 0.6 किसके बीच में? 4 और 3 के बीच में. इसलिए मैं फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर रहा हूं. सो इन शॉर्ट फ्रेंड, गो एंड चेक आउट व्हाट इज थर्ड टर्म and then 0.6 and fourth term minus third term में क्या डिफरेंस है? So if you see the question here, third term is what? 4 and fourth term is what? 5 minus 4. तो in short सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट उनके करें कि थर्ड टर्म अपना क्या है साहब? What is your third term? तो थर्ड टर्म is 4 as it is और उसके बाद 0.6 5 minus 4. So in short 4 plus 0.6 into 1. So I am getting decile 3 as 4.6. बहुत simple सा. What is the formula? D3 is what? n into n plus 1 divided by 10. तो 3 लिखा, n 11 plus 1 12, 12 into 3 3.6. अब 3.6 टर्म मतलब थर्ड टर्म फिक्स प्लस 0.6 4 minus 3. I hope you understood. अब बच्चों D3 के बाद चलो D5 लेते हैं. और मैंने आपको बोला D5 is equal to quartile 2 and it is also equal to percentile 50. क्यों? अभी देखो. तो D5 क्या होगा? 5 into n plus 1 divide by 10 टर्म. अब बच्चों यार अगर चेक किया, थोड़ा मैथ्स आता रहेगा तुमको. 5 1 एंड 5 2 कैंसिल होता. सो डेसाइल 5 क्या आ रहा है? n plus 1 divide by 2 और वैल्यू इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू योर क्वार्टाइल 2. तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से सॉल्व करो. डेसाइल 5 इज 11 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म विच इज डेसाइल 5 इज 6th टर्म. अब 6th टर्म आपने ऑलरेडी किया था, इट इज 9. गो एंड चेक आउट बिकॉज हमने क्वार्टाइल 2 किया था एंड आई टोल्ड यू इफ यू सी द वैल्यू इज सेम. जस्ट 1 second फ्रेंड, इट इज टेकिंग टाइम. So if you see this decile, you'll find out that you are getting the same answer here. So decile 5 is, it would be 9. अब decile हो गया तो I explained you how did you find decile? Simple, arrange data ascending order. Then what is to be done? Find out n and then what's the formula? Decile का n into n plus 1 divided by 10. n डेसाइल 3 जो 3 5 8 कुछ भी पूछेंगे तो n इज द नंबर ऑफ डेसाइल जो पूछा है और फिर बाकी n इज n नंबर ऑफ द टर्म. ये दोनों याद रखें, डिवाइड बाय 10 और फिर उसके अकॉर्डिंग टू आप सॉल्व कर लो. अब बच्चों डेसाइल हो गया, क्वार्टाइल हो गया, डेसाइल हो गया. अब क्या है? परसेंटाइल. अब परसेंटाइल कौन सा चाहिए? परसेंटाइल 30 चाहिए. तो परसेंटाइल भी सेम लॉजिक से सॉल्व करना है. एक्चुअली दिस लिटिल बिट प्रॉब्लम विद दिस, एक्चुअली द डेटा आई कैन नॉट. So I hope you are getting this right, friend. Okay, next step ahead. So if this is done, friend, what I would do is I'll take the question on percentile as a separate, because point is this, the laptop is bit there's problem with the software, maybe that's why it's not working properly. So I right now explain you what is quartile, explain you what is decile. The last step is I would explain you what is percentile. So I'll take a question here on percentile friend. एक सिंपल से क्वेश्चन ले लेता हूँ percentile पे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन percentile.
या यहाँ ही सेम क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना रहेगा बच्चों, सो हाउ वुड आई सॉल्व, लेट्स से परसेंटाइल 30 पूछा है तो क्या करूँगा, इट्स सिंपल 30 इंटू n+1 डिवाइड बाय 100 टर्म, मतलब यार n जो पूछा वो रहेगा 30, 50, 60 जो भी, और n+1 डिवाइड बाय 100। अब यार ये टर्म है, सो परसेंटाइल 30 इज 30 एज इट इज, n इज 11 प्लस 1 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, परसेंटाइल 30, 1 0 1 0 कैंसिल, इन शॉर्ट हो क्या रहा है 12 डिवाइड बाय 10 थीटा। अब यार ये 30 तो 3 रहेगा, तो परसेंटाइल 30 क्या होगा 3 इंटू 1.2, अब सेम वही 30 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू योर डेसाइल 30। अब इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 330 का 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, ये देखा तुमने 1 0 1 0 कैंसिल, ये 3 था, 12 डिवाइड बाय 10 इज 1.2, तो इट इज 3.6 टर्म। आई होप यू अंडरस्टूड, 1.2 इंटू 3 इज 3.6। अब इसको P30, अब 30 यार थर्ड टर्म, ये सेम डेसाइल जैसे हो गया ना अभी जैसे 30 से, तो यहाँ क्या करेंगे थर्ड टर्म प्लस 0.6, यार 3.6, 0.6 कहाँ आएगा, सो बेसिकली इट वुड बी थर्ड टर्म और फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, सो इट वुड बी फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। सो इन शॉर्ट डेसाइल 3 ऑलरेडी हमको पता है इट इज 4 प्लस 0.6 क्या होगा बच्चों एज इट इज, देखिए फोर्थ टर्म ये था, सॉरी 5 था, 5, just 1 second, let me rub this, I hope this is working, so it would be fifth, यहाँ fifth term minus fourth term, so in short 4 plus 0.6, this is 5 minus 4, so in short you got the answer 4.4 plus 0.6 into 1 which is 4.6, this is percentile 30, it is almost equal to your ऐसे। अब लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट पार्ट जो आ रहा है परसेंटाइल 50, अब उसमें अगर मैं सॉल्व करूंगा इट इज, आई टोल्ड यू परसेंटाइल 50 डेसाइल 5 एंड क्वार्टाइल 2 इज सेम, देख लो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। परसेंटाइल 50 इज n इंटू n+1 डिवाइड बाय 100, ये परसेंटाइल का फॉर्मूला है, यहाँ 50 आ जाएगा, ये n इज 11 प्लस 1 अपॉन 100, अब ये देखो 50 1 और 2 जा, तो इन शॉर्ट परसेंटाइल 50 इज नथिंग बट n+1 अपॉन 2, अब ये n तो 11 था यार, तो परसेंटाइल 50 इज 11 प्लस 1 डिवाइड बाय टर्म। अब इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों, इफ यू सी दिस इट इज 6th टर्म परसेंटाइल 50, एंड इफ यू आस्क मी परसेंटाइल 50 6th टर्म क्या है तो जाके चेक करो, इट इज 9। अब एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, एक सबसे लॉजिकल थिंग इज कि अगर आप देखोगे क्वार्टाइल 2 और डेसाइल 5 और परसेंटाइल 50 दे ऑल हैव द सेम आंसर, व्हाई सेम आंसर, व्हाई बिकॉज इफ यू सी, अगर लॉजिक देखो क्वार्टाइल 2 क्या था 2 इंटू n+1 डिवाइड बाय 4, ये 2 कट होता है, मैं इससे कट करता हूँ 1 जा एंड 2 जा, सो क्वार्टाइल 2 वॉज नथिंग बट n+1 अपॉन 2। अब डेसाइल का भी फॉर्मूला देखो बच्चों, डेसाइल 5 इज 5 इंटू n+1 अपॉन 10th टर्म, अब इसको कट करो, ये 5 1 जा और ये 2 जा, इसको सॉल्व किया तो इन शॉर्ट आ क्या रहा है n+1 अपॉन 2, तो डेसाइल 5 का भी सेम फॉर्मूला है, और परसेंटाइल 50 भी देखो तो 50 प्लस n+1 अपॉन 100th टर्म, 50 1 जा और ये 2 जा, तो बच्चों परसेंटाइल 50 इज सिंपल n+1 upon 2. So that's why I said all three are equal. I am only covering this much. Other than this, the group data we might take in the subsequent lecture. The last statement is I wanted to see, friends. See, simply I'll revise in 30 seconds what I have taught you. I explained you what is quartile, what is decile, and what is percentile. Simple. Data split into 4 part quartile, data split into 10 part decile, data split into 100 part percentile. What's the formula quartile? N into n+1 divided by 4. What's the formula for decile? N into n+1 divided by 10. What's the formula for percentile? N into n+1 divided by 100. Then I solved bit of sums. Other than that, friends, see, we can cover up only one sums. In case still you have doubt, drop me a message.
And just last request, please go through the videos. In case you like and found value to your education, then do share with maximum number of student of your 11th standard, and do subscribe the channel. Thank you for watching. Stay tuned for the subsequent lecture.